Hello everyone, I'm Sarvesh from DSC VIT Pune. Hope you have been doing well till the time. Okay, so let us not get bored because the time is pretty less with us and cheer up for the last topic of today, that is loops and control statements. So, okay, I'll first present my screen. Uh, Hope my screen is visible. Okay, so before starting this up, I'd like to ask you one thing. So, did you guys get what was taught till abhi tak? Like each and every concept of at least day one is important. Like if you get what was taught on day one, you'll get the next part, because this is the most basic concept and even the most important one also. Like ये समझा तो फिर आगे का समझेगा. So if you guys stuck anywhere, let me know. Maybe you can type that in the chat box, or if there is any confusion, directly DM us in the chat box. And rather making it one-side conversation, I'd like to prefer uh, both-side conversation among us. So please be interactive during this session. And okay, so let's move on. अच्छा ठीक है. Before that, I'd like to give you a suggestion. So while coding, always think you can't see the next line, or think you're dumb and you don't know what's happening in the code. Say while debugging or while reading a code. Like एक एग्जांपल देता हूँ. So तुमको अभी बेसिक्स पता है सब, राइट? So अभी एक कोड दिखाता हूँ. So उसमें you'll get to know कि what I'm talking about. So okay. So अभी के लिए फर्स्ट 4 लाइन्स है ना, फर्स्ट 4 लाइन्स ड्रॉप कर दो. You'll get to know that 4 lines, like what is the significance of this 4 lines in next few days. Like we are going to cover that part, but अभी के लिए ये 4 lines छोड़ दो and focus from here. Like तुमको अगर anytime someone asks you, even if your teacher asks you to write a logic, you can directly start from here and they won't say anything. So basically, this is the main code, or this is the main logic which is used in a code. So अभी how to read a code. So first of all, एक मतलब एक लाइन देखो. Don't move on or don't jump to the next line before seeing the first line, and analyze the first line and think as if you only know the first line and you don't know the rest. So इधर क्या है फर्स्ट लाइन पे? int a b. So what is int? So जैसे आर्यन ने एक्सप्लेन किया था कि int is a data type used for integer. अभी int वेरिएबल यूज किया मैंने दो इधर, a और b. So ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर वेरिएबल्स है, क्योंकि इधर मैंने int लिखा है. So a और b की जगह आई कैन स्टोर एनी वेरिएबल. सो मैंने दो वेरिएबल पहले ले लिए कि मुझे ऐड नीड टू वेरिएबल्स. सो नेक्स्ट टाइम पे क्या किया मैंने? सो बेसिकली टर्मिनेशन रहता ना, दैट मीन्स कि you are done with this time and you would like to move to next command. So whenever a compiler sees a semicolon, that is a termination, it would move to next line or next command. So cout, what does cout mean? Aryan ने explain किया था, but I'd explain that in short. So cout is basically your printf in C, print in Python. मीन्स बेसिकली क्या करता है कि वो एक कमांड आउट करता है. मतलब वट एवर कमांड यू आर गिविंग टू द कंपाइलर, इट वुड गिव सेम कमांड ऑन द आउटपुट साइड. अभी वट कमांड मतलब अभी मैंने क्या कमांड दिया है कि टाइप एनी टू इंटीजर्स और फिर कोलन, और फिर क्या किया है कि एंड लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन पे जैसे बोला है. तो ठीक है, एक बार रन करता है, फिर यू गेट अ प्रॉपर आइडिया. तो अभी क्या बोला उसने कि टाइप एनी टू इंटीजर्स और फिर कोलन. सो उसके बाद एंड लाइन करके मैंने फिर से टर्मिनेशन दिया कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद फिर से टर्मिनेशन. सो टर्मिनेशन जाके नेक्स्ट कमांड पे गया. व्हाट इज नेक्स्ट कमांड? नेक्स्ट कमांड इज सी इन. सो बेसिकली सी आउट का अपोजिट क्या है? सी इन. आउट का अपोजिट इन है. वैसे सी आउट मतलब अगर आउटपुट दे रहा है, सी इन मतलब क्या करेगा? इनपुट लेगा. सो सी इन मीन्स द कंपाइलर हैज टू टेक सम इनपुट ऑन द ऑन हिज साइड. सो इनपुट लेके ही हैज टू स्टोर समवेयर, राइट? लाइक अगर तुम कुछ ऐसे कोई किसी ने कुछ बोला है, तो यू हैव अ स्टोरेज इन योर ब्रेन वेयर यू स्टोर द थिंग्स. सो तुम जो कुछ भी सोचते हो वो किधर भी स्टोर करते हो. एग्जैक्टली सेम थिंग होता है कंप्यूटर के साथ. सो वट एवर इनपुट इट टेक्स, इट हैज टू स्टोर समवेयर. सो बेसिकली आई हैव सेड दैट वट एवर आई गिव एन इनपुट टू स्टोर इट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ए. सो क्या करेगा कि मैंने अगर अभी कुछ भी इंटीजर लिखा,
तो it would store that instead of a. So wherever it would say a, it would substitute that value. जैसे कि अभी मैंने 150 लिखा इधर, तो और एंटर दिया, तो अभी क्या हुआ कि जिधर भी वो ए दिखेगा, हाँ ए दिखेगा, उधर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा क्या 150, क्योंकि मैंने क्या बोला है ए इज इक्वल टू 150 अभी, तो ए की जगह 150 स्टोर हुआ, देन मैंने बोला कि बी का भी इनपुट लेना है, सो आई राइट हियर -30, सो आई राइट हियर -30, सो अभी क्या हुआ कि जैसे ए की जगह पे 150 स्टोर हुआ, बी की जगह पे -30 स्टोर हुआ, अगेन टर्मिनेशन, नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट में फिर से क्या होगा कि जो कोई भी तुम्हारा स्टेटमेंट है इट वुड गेट प्रिंटेड, तो अभी अगर आई प्रेस एंटर, so what I got on the output side is first the out statement is you have, इतना प्रिंट हुआ पहले, you have space, अभी इधर क्या लिखा था मैंने ए की जगह 150, क्योंकि क्या इधर मैंने ए की जगह इनपुट दिया है 150 प्रिंट हुआ, देन स्पेस IQ फुल स्टॉप, स्पेस IQ फुल स्टॉप, और फिर एंड लाइन, नेक्स्ट कमांड पे क्या आया, सी आउट सेम योर फ्रेंड हैज स्पेस बी मीन्स क्या है -30 स्पेस IQ, फिर से गया एंड लाइन, टर्मिनेशन के बाद क्या, रिटर्न जीरो क्या होता है कि जैसे अगर कोई तुमको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना है तो तुम टर्मिनेशन देते हो, तो वो क्या करता है उधर वो स्टेटमेंट एंड करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाता है, वैसे रिटर्न जीरो क्या है, सो अभी के लिए यू कैन थिंक दैट रिटर्न जीरो इज समथिंग बेसिकली टर्मिनेशन फॉर योर होल प्रोग्राम, कि उधर जाके यू आस्क कंपाइलर दैट माय प्रोग्राम लाइक व्हाटएवर आई वांटेड टू डू विद द प्रोग्राम हैज बीन डन, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, सो यू कैन एंड द प्रोग्राम हियर, so return zero basically ends your program. So अभी के लिए you guys have at least got to know कि how to read a code or how to debug a code. So we'll move on to loops next. Basically loops में बहुत जरूरत पड़ती है debug करने की, and while debugging you have to break that into small blocks, and that is very essential to read a code. So first of all, what are loops? So the word itself explains the term actually. Loops means repeating the same process or same thing again and again. Like if you're doing that thing once, you're doing the same thing again, and then again and again you're doing the same thing. That means you're in a loop. So एक example देता हूँ, से कि मेरी कोई क्रश है, so what I'm doing is कि I'm asking her for a coffee and she says next time, क्या पता तुमको मिलता है कि नहीं, मेरे को तो ये रिप्लाई मिलता है नेक्स्ट टाइम, सो अगेन नेक्स्ट टाइम आई आस्क हर फॉर अ कॉफी, अगेन शी सेज नेक्स्ट टाइम, तो ऐसे चलते रहता है, तो व्हाट वी कैन से दिस, जैसे स्माइल दिख रही है पर समझो थोड़ा बहुत, तो व्हाट वी कैन से इज कि हाँ कट रहा है, आई नो कट रहा है, बट टेक्निकली व्हाट वी वुड से दिस इज कि आई एम इनसाइड अ लूप, कि व्हेनेवर आई आस्क हर फॉर अ कॉफी, what reply or what output I get on the output side is next time. I think I should ask her for a chai because that is love. So then आगे बढ़ते हैं. So there are different types of loops, for loop, while loop, do while loop, and some more loops like infinite loop वगैरह वगैरह, वो आगे देखते हैं एक एक करके. So basically I'd start with explaining the flow of my teaching. ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गया शायद से. I'd start with explaining the flow of my teaching. So basically पहले I'd be explaining the syntax, कि what is the basic syntax or how to enter the code. Then I'd explain some concept about the loop, कि उसको कैसे यूज करना है. ठीक है, देखते हैं आगे, you'll get to know like how I'll explain. So let us start with the for loop. So basically for loop का syntax क्या है? First of all for loop में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कंडीशन, वी गिव इट अ कंडीशन टू चेक, एंड देन एट लास्ट वी अपडेट वेरिएबल. कोड ही देखते हैं, कोड से अच्छे से समझ में आता है. सो ओके, सो दिस इज द कोड फॉर फॉर लूप. जैसे मैंने बोला कि ये 4 लाइन अभी के लिए कुछ काम के नहीं है, छोड़ दो. नेक्स्ट इज 5th लाइन से शुरू करो, सीधा 5th लाइन से लॉजिक शुरू होता है. सो फर्स्ट क्या किया मैंने कि आई हैव इनिशियलाइज्ड अ वेरिएबल, इनिशियलाइज भी नहीं किया उसको, तो सिर्फ एक वेरिएबल लिया है, दैट इज मैक्स इक्वल टू 10. सो व्हाट माय कंपाइलर वुड डू नाउ इज कि wherever it would see max, it would substitute 10. मैक्स दिखा कि उधर 10
10 ही देखने का, मैक्स छोड़ देने का भी। सो फ्रॉम हियर माय फॉर लूप स्टार्ट्स। सो व्हाट डज फॉर लूप डू इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट i इज इक्वल टू 1। सो ये क्या था कि हाँ, वेरिएबल इनिशियलाइज किया, क्या था, इंट i इज इक्वल टू 1, मतलब i इज इक्वल टू 1 किया मैंने पहले। तो क्या किया कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसको वैल्यू दी 1। नेक्स्ट इज कंडीशन। सो एक टर्मिनेशन एंड देन आई रोट अ कंडीशन कि क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे लूप में एंटर करने के लिए। सो जैसे डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सो मेरे छोटे से कंपनी को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि लूप में एंटर करने के लिए। सो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्स, दैट इज 10। सो आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन लास्ट में वेरिएबल अपडेट किया है, मतलब आई प्लस प्लस, वेरिएबल अपडेटेड आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या होता है कि बेसिकली तुम्हारा एक से अपडेट होता है। सो समझो कि मैंने कोई रैंडम नंबर चूज किया 55, बोला कि आई प्लस प्लस ऑन 55। So what would be I plus plus on 55? It would increase a 55 or increment a 55 by 1. That would be 56. 56 पे I plus plus बोला कि 57. So basically that increases your value by 1. And similarly there's another command that is I minus minus. So I minus minus में क्या होता है कि that मतलब एक से वो डिक्रीमेंट करता है। 56 है, बोला कि I minus minus on 56. So it would get me 55. ऐसे on any random number. तो इधर क्या किया मैंने, वेरिएबल अपडेट किया। आई प्लस प्लस मतलब मेरा वेरिएबल लास्ट में अपडेट होगा। सो आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन बराबर है, लूप में गया, इधर से मेरा लूप चालू होता है फ्रॉम दिस ब्रैकेट टू दिस ब्रैकेट, लूप में गया। सो इधर क्या बोला मैंने, सी आउट आई। सो एज ऑफ नाउ आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1 प्रिंट हुआ कंपाइलर में, मतलब कंपाइलर में प्रिंट हुआ, फिर स्लैश एन। सो व्हाट बेसिकली स्लैश एन इज की जैसे हमारा एंड लाइन फंक्शन था, तो अभी के लिए तुम बोल सकते हो कि स्लैश एन इज समथिंग सिमिलर टू एंड लाइन। क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन पे जाता है, जैसे हम एंटर दबाने पे नेक्स्ट लाइन पे आता है, वैसे ही कंपाइलर के लिए स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर से इधर तक आया, देन इट गॉट बैक इन द फॉर लूप। सो अभी क्या है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि अभी वेरिएबल एक से अपडेट होगा, तो अभी 1 था, आई प्लस प्लस लगा, 2 हुआ। सो व्हाट वुड हैपन इज आई इज इक्वल टू 2, नाउ आई इज इक्वल टू 2। So what would it do is कि I की जगह पे 2 is less than equal to max, that is 10. 2 is less than equal to 10, correct? It would enter the loop, see out 2 print हुआ, I की जगह पे 2 था, 2 print हुआ। Next line 3 variable update हुआ, 3 is less than equal to 10, correct? 3 print हुआ। Next line जैसे 4 5 6 7 8 9, अभी आया 10 पे, इधर उसकी वैल्यू हुई 10। okay, so here I is equal to 10, अभी I is equal to 10, so what would be I 10 है, so 10 is less than equal to 10, मैक्स की वैल्यू क्या है 10, less than equal to 10, equal to दिया, so 10 is equal to 10, करेक्ट। सो लूप में एंटर हुआ, सी आउट मतलब क्या, 10 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट लाइन पे गया, इधर फिर से वेरिएबल एक से अपडेट हुआ, 10 का 11 हुआ। 11 में क्या हुआ कि इंट I is equal to 11, राइट? I मतलब 11 is less than equal to 10, अच्छा नहीं लग रहा सुनने को, रॉन्ग है। सो क्या हुआ कि इधर तक आया, कंडीशन रॉन्ग है, इसकी वजह से इट रेस्ट्रिक्टेड इट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लूप। सो इधर से लूप में एंटर नहीं हुआ, तो ये ब्रैकेट से सीधा जंप होके एंड, ब्रैकेट के एंड पे आया। ब्रैकेट पे एंड पे आने के बाद इट वेंट ऑन टू नेक्स्ट कमांड, दैट इज रिटर्न 0, एंड वी सॉ दैट व्हाट डज रिटर्न 0 डू इज कि इट गेट्स अस एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। तो ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं, सो यूड गेट आइडिया। सीरियल फ्रॉम 1 to 10 इज प्रिंटेड हियर, 10 के आगे क्या हुआ वो हमने देखा, इसीलिए मतलब दैट गेव यू एन आइडिया कि 11 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि दिस कंडीशन वाज रॉन्ग। ओके, सो वापस मूविंग ऑन टू स्लाइड। सो अभी और एक कोड, मतलब अभी हमने जो कोड देखा वो फॉर लूप का था। सो बेसिकली होता क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वैल्यू, लाइक ये वेरिएबल के जगह, मतलब इफ आई पुट i इज इक्वल टू 11 सीधा, सो वो एंटर ही नहीं करेगा। सो बेसिकली फॉर लूप डिपेंड्स अपॉन योर इनिशियल वैल्यू, एंड लाइक जब मैं हाँ, एंड मेन थिंग इज कि you use for loop when you the number of you know the number of iterations that the for loop is going to perform, like say कि
तुमको 1 से 100 प्रिंट करना है. सो व्हाट यू नो इज कि व्हेन यू रन अ लूप 100 टाइम्स यू वुड गेट 1 2 3 4 मतलब i प्लस प्लस 1 पे i प्लस प्लस लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, 3 पे लगेगा, और जैसे ही इट वुड रीच ऑन 100, मतलब जैसे ही 100 पे 100 इटरेशंस हो जाएंगे उसके, सो इट वुड एग्जिट फ्रॉम दैट लूप. सो इधर मतलब ऐसा होता है कि इट डिपेंड्स इट जैसे तुम जब तुम फॉर लूप यूज करते हो, यू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस. एंड या वन मोर थिंग, लाइक एज ऑफ नाउ यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग. Before that, I'd like you to introduce the most commonly used variable, that is I. So you would probably know the significance of I in coding. As you code more and more, you'll know कि हर जगह पे I ही use होता है. Even I don't know why that is used, but I plus plus minus minus I या फिर ऐसे कुछ भी रहता है ना, तो I is used. So moving on next to while loop, but I guess it's actually 8:30, so we would have to wind up the session by 8:30. So I think we'll stop at for loop and we'll continue while loop in the next session. So Tanishka, can we end up session here?